پھر ایک کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ وہ جیسے ہی 2 قدم آگے بڑھی، اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ ایک پڑی ہوئی کرسی پر ایک انسانی ڈھانچہ بندھا ہوا پڑا تھا۔ دریا پلٹ کر دروازے کی طرف دوڑی۔ دروازے میں وہ کسی سے ٹکرا کر گر پڑی۔ اس کے حلق سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کے سامنے دیو قامت خامس کھڑا تھا۔ اندھیرے میں بھی اس کی سرخ آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دریاب انتہائی دہشت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ اسے اپنے سینے میں دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ تلاش کرو، مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے، خامس چیخا، اور اس سے پہلے کہ بشیرہ کوئی جواب دیتا، جھونپڑے کی پچھلی طرف سے کسی بکری کے ممیانے کی آواز سنائی دی۔ خامس ایک جھٹکے سے اٹھ گیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا جھونپڑے کی پچھلی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد واپس آیا تو اس نے بغل میں ایک بکری دبا رکھی تھی۔ بالکل ایسے لگتا تھا جیسے کسی بچے نے بغل میں کوئی کھلونا دبا رکھا ہو۔ بکری بری طرح منمنا رہی تھی۔ تم کہتے تھے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اور خامس نے بکری کو اس طرح دونوں ہاتھ میں لٹکا لیا جیسے وہ اس کے لیے کوئی معمولی سا کھانا ہو۔ لکڑیاں جمع کرو اور اسے بھون کر کھائیں گے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ خامس نے بکری کو زمین پر پٹک دیا اور خنجر اس کی گردن پر پھیر دیا۔ بکری زمین پر تڑپنے لگی اور خامس قریب کھڑا دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ بشیرہ یہ منظر دیکھ کر لرز اٹھا تھا۔ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ خامس چیخا۔ بشیرہ فوراً ایک طرف دوڑا گیا اور چند منٹ بعد جب وہ لکڑیاں جمع کر کے واپس آیا تو خامس اپنے خنجر سے بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ بشیرہ نے اینٹوں کا بڑا سا چولہا بنا کر اس میں آگ جلا دی۔ خامس نے بکری کے لاش صاف کر کے اس کے ٹکڑے کر دیے اور دونوں رانے اور دستیاں چولہے پر رکھ دیں۔ وہ ابھی گوشت پر گھون ہی رہے تھے کہ کھیتوں میں ایک آدمی دوڑتا ہوا نظر آیا اور اس کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ وہ جھونپڑے سے بہت دور کسی کھیت میں کام کر رہا تھا اور دھواں دیکھ کر اس طرف آ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ اور میری یہ بکری؟ اور وہ ایک طرف پڑی ہوئی بکری کی کھال اور علائشوں کو دیکھنے لگا۔ تم کون ہو؟ اور خامس کسی غسیلے بچے کی طرح چیخا۔ میں یہاں کا راکھا ہوں اور تم۔ وہ ہکلا کر رہ گیا اور اس نے خامس کو پہچان لیا تھا۔ یہ زمینیں اگرچہ جاگیر میں شامل نہیں تھی لیکن خامس جیسے ایک شخص کو آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی جانتے تھے۔ ہاں میں خامس ہوں، بھاگ جاؤ یہاں سے، خامس چیخا۔ نہیں بھاگو مت، اور بشیرے سے باندھ کر ایک طرف ڈال دو تاکہ یہ دیکھ سکے کہ اس کی بکری کہاں گئی۔ بشیرے نے اس شخص کو باندھ کر ایک طرف ڈال دیا اور اس نے گوشت کے پارچے بھی چولہے پر رکھ دیے تھے لیکن آگ دھیمی ہو رہی تھی۔ اور لکڑیاں لے کر آؤ، خامس نے بشیرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور لکڑیاں نہیں ہیں، بڑی مشکل سے یہ جمع کر کے لایا تھا، بشیرے نے جواب دیا۔ خامس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 4 پائی اٹھا کر پٹک دی اور اس نے 4 پائی کے 2 پائے توڑ کر چولہے میں جھونک دیے اور پھر کچھ دیر کے بعد 4 پائی کے باقی حصے بھی چولہے کی نظر ہو گئے۔ ایک طرف بندھا ہوا کسان بے بسی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ گوشت پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا لیکن خامس کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے ایک ران چولہے سے اٹھا لی اور ٹھنڈی ہونے کا انتظار کیے بغیر وحشیوں کی طرح اسے دانتوں سے بمبوڑنے لگا۔ بشیرے نے بھی ایک دستی اٹھا لی اور بوٹیاں نوچ نوچ کر کھانے لگا۔ دونوں رانے اور کئی پارچے خامس کے پیٹ میں پہنچ چکے تھے۔ اس نے مٹکا اٹھا کر منہ سے لگا لیا، پھر پانی پینے کے بعد ایک درخت کے سائے میں لیٹ گیا۔ پیٹ بھر جانے کے بعد اس پر خمار سا طاری ہونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ بشیرے پر بھی غنودگی سی طاری ہو گئی اور وہ بھی زمین پر لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ بھی نیند کے آغوش میں پہنچ چکا تھا۔ رسیوں سے بندھا ہوا کسان بے بسی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خامس گہری نیند میں تھا۔ جسم پر پڑنے والی ایک زوردار ٹھوکر سے وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دوسری ٹھوکر پڑی تو صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ وحشی سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ نصف درجن پولیس والوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور ان کی رائفلوں کا رخ اسی کی طرف تھا۔ خامس نے زندگی میں پہلی بار اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا تھا۔ وہ چاروں طرف سے پولیس کی رائفلوں کی زد پر تھا، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ زمین پر پڑا بے بس نظروں سے باری باری پولیس والوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس طرح ہمیں گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اٹھو! اور پولیس پارٹی کے انچارج
एएसआई ने उसके कोले पर जोर से ठोकर मारते हुए कहा और दूसरी ठोकर ने खामस का दिमाग घुमा दिया और वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम मुझे ठोकरें मार रहे हो, वो चीखा। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? कच्चा चबा जाऊंगा तुम्हें। और फिर एएसआई के हाथ में पकड़े हुए रिवाल्वर की परवाह किए बगैर खामस ने उस पर छलांग लगा दी। एएसआई को गालबन इस हमले की तवक्का नहीं थी और वह खामस की गिरफ्त में आ गया। खामस ने एक हाथ से उसका गला दबोच लिया और दूसरे हाथ से उसकी रिवाल्वर वाली कलाई पकड़ ली। इस दौरान रिवाल्वर का ट्रैगर दब गया और गोली सामने खड़े हुए एक कांस्टेबल के बाजू पर लगी। वो चीखता हुआ अपने जख्मी बाजू पकड़कर नीचे बैठता चला गया और खामस ने एएसआई के हाथ को एक और झटका दिया। रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। एएसआई पूरी तरह खामस की गिरफ्त में था। खामस ने अब दोनों हाथों से उसकी गर्दन दबोच रखी थी और उसे जोर जोर से झटके दे रहा था। उसके हलक से खरखराहट जैसी आवाजें निकली। दूसरे पुलिस वाले पहले तो सूरत हाल को समझ नहीं सके और जब उनके हवास बहाल हुए तो सब बीक वक्त आगे बढ़े और एक कांस्टेबल ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से खामस के कंधे पर रसीद कर दिया। दूसरे ने उसके कोले पर जोरदार ज़रब लगाई थी, लेकिन खामस पर उसका कोई असर ना हुआ। खामस पर जुनून तारी था और उसकी हलक से खौफनाक गुर्राहटें निकल रही थी। वो एएसआई को ऊपर लटकाए जोर जोर से झटके दे रहा था। एएसआई बुरी तरह हाथ पैर हिला रहा था और उसके चेहरे पर करब के आसार थे और आंखें हल्कों से उबली पड़ी जा रही थीं। छोड़ दो इसे वरना गोली मार दूंगा, एक कांस्टेबल चीखा, जबकि दूसरे ने अपनी राइफल को लठ की तरह घुमाकर उसकी कमर पर जोर से ज़रब लगाई थी। मगर खामस पर ना तो उसकी ज़रब का कोई असर हुआ और ना ही धमकी का। पुलिस वाले बुरी तरह बदहवास हो गए थे और गालबन उसे बदहवासी में उनके समझ में नहीं आ रहा था कि इस देवजात से किस तरह निपटा जाए। उनका पुलिस अफीसर उसके देवजात की गिरफ्त में था और वो उसे बचाना चाहते थे। दो पुलिस वाले लाठियों की तरह खामस पर राइफलें बरसा रहे थे। खामस एएसआई को दबोचे बड़ी तेजी से अपनी जगह से घूम गया और उसके हाथ में झूलता हुआ एएसआई दो पुलिस वालों से टकराया और कराते हुए जमीन पर ढेर हो गया। तीसरा पुलिस वाला खामस की तरफ लपका और खामस ने एएसआई का पूरी कुव्वत से उसकी तरफ उछाल दिया। वो दोनों आपस में टकराकर जमीन पर गिर गए। एएसआई तो बेहसो हरकत पड़ा रहा जबकि कांस्टेबल उठने की कोशिश कर रहा था। खामस ने आगे बढ़कर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। एक और कांस्टेबल राइफल को नाल की तरफ से पकड़े खामस की तरफ लपका। वो राइफल के बट से खामस के सर पर वार करना चाहता था। उस वक्त खामस पीछे मुड़ा। राइफल का बट उसके सर की बजाय कंधे पर लगा और इससे पहले कि कांस्टेबल दूसरा वार करता, खामस ने उसके हाथ से राइफल छीन ली और दोनों हाथों से पकड़कर उसे घुटने पर इस तरह मारा कि राइफल दो टुकड़े हो गई। कांस्टेबल फटी फटी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। खामस ने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और दोनों हाथों पर से ऊपर उठाकर दूर उछाल दिया। वो एक और कांस्टेबल के ऊपर गिरा। एक और कांस्टेबल राइफल नाल की तरफ से पकड़े खामस की तरफ लपका। उसने खामस की टांग पर वार किया। ज़रब खामस के घुटने के पिछले हिस्से पर लगी और वह लड़खड़ाकर बेहोश पड़े हुए एएसआई के ऊपर गिरा। उसी कांस्टेबल ने एक और वार किया। खामस बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। राइफल का बट एएसआई के सर पर लगा। वार पूरी कुव्वत से किया गया था। एएसआई की खोपड़ी पाश पाश हो गई। पुलिस कांस्टेबल दहशत दसी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। खामस बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। वो जैसे ही कांस्टेबल की तरफ बढ़ा, उस कांस्टेबल ने राइफल फेंक दी और एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो चीखता हुआ इस तरह दौड़ रहा था जैसे जहन्नम की बलाएं उसका पीछा कर रही हों। ये सूरत-ए-हाल देखकर दूसरे का कांस्टेबल भी भाग खड़े हुए और उन्हें अपनी राइफलों तक का होश नहीं रहा था। सिर्फ एक कांस्टेबल रह गया और उसके बाजू में गोली लगी थी और वह अपने जख्मी बाजू को पकड़े अकड़ों बैठा था। खामस उसकी तरफ बढ़ा तो कांस्टेबल खौफ से कांपने लगा। वो फटी फटी आंखों से खामस की तरफ देख रहा था जो मौत के फरिश्ते की तरह उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके ख्याल में खामस इंसान नहीं था, कोई माफूकुल फितरत हस्ती थी जो 6 आदमियों के काबू में नहीं आ सका था। कांस्टेबल अपनी जगह से उठना चाहा मगर खामस ने उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कांस्टेबल बुरी तरह चीख रहा था और बिल आखिर उसे मौका मिल गया और वो उठकर खेतों की तरफ भाग खड़ा हुआ। मैदान खाली हो गया था। एक तरफ एएसआई की लाश पड़ी थी, उसकी खोपड़ी से बहने वाला खून चारों तरफ बिखरा हुआ था। कांस्टेबलों की राइफलें इधर उधर पड़ी थी। खामस एक ही जगह पर खड़ा अतराफ का जायजा ले रहा था। एएसआई ने जब उसे ठोकरें मारकर सोते से जगाया था
तो उसने बशीरे को भी पुलिस की हिरासत में देखा था, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता उसका घोड़ा मौजूद था। बशीरा गालबन खेतों में कहीं छुप गया था या मौका से फायदा उठाकर भाग गया था। झोंपड़े की पिछली तरफ पुलिस की बगैर छत वाली जीप खड़ी थी। वो कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर उस किसान की तरफ मतवजा हो गया जो अब भी झोंपड़े के सामने बंधा पड़ा था। खामस निपे तलब कदम उठाता हुआ उसके करीब आ गया और उसके कोले पर ठोकर मारते हुए गुड़ाया। ये पुलिस वाले जब आए थे तो तुमने मुझे बताया नहीं। तुम समझते हो कि ये मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और उनका अंजाम देख लिया तुमने। अब तुम्हारा भी यही हश्र होगा। मुझे माफ कर दो। वो शख्स गगयाया। मैं बेकसूर हूँ, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा और तुम तो मेरी एक बकरी से भी भून कर खा गए हो। खामस से आज तक कोई नहीं टकराया। खामस चीखा, जो टकराता है तबाह हो जाता है। तुमने मुझे पुलिस के बारे में नहीं बताया और तुम्हें भी उसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। वो शख्स रहम की भीख मांगने लगा। तुम्हें अपनी बकरी की फिक्र है ना? अब मैं तुम्हें तुम्हारी बकरी के पास पहुंचा देता हूं। खामस ने कहते हुए झुककर उसे उठा लिया और झोंपड़े के अंदर ले जाकर चारपाई पर पटक दिया। बाहर आकर वो एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। चूल्हे पर अभी तक कोयले दहक रहे थे। उसने कुछ कोयले उठाकर झोंपड़ी के घास फूस की छत पर डाल दिए। चंद सेकंड बाद ही छत से हल्का हल्का धुआं उठने लगा। खामस ने जमीन पर पड़ा हुआ मटका उठाकर उसमें बचा खुचा पानी हल्क में उंडेला। खाली मटका एक तरफ उछाल दिया और अपने घोड़े के करीब आ गया। घोड़े पर सवार होने से पहले उसने अपनी राइफल उठा ली थी। उसने एक बार फिर इधर उधर देखा और घोड़े को खेतों में एक तरफ दौड़ा दिया। झोंपड़े में बंधे हुए किसान की चीखें दूर तक उसका पीछा करती रहीं। एक मर्तबा उसने पीछे मुड़कर देखा। झोंपड़े की छत से अब शोले उठने लगे थे जो बड़ी तेजी से फैल रहे थे। खामस अच्छी तरह जानता था कि यह इलाका जागीर में शामिल नहीं था और पुलिस वालों का तलक भी शाहपुर से था। आदमपुर के वाक़े की इतला गालबन सुबह सवेरे ही शाहपुर पहुंच गई थी। पुलिस वालों ने चारों तरफ उनकी तलाश शुरू कर दी थी। वो तो फंस ही गया था, लेकिन किस्मत अच्छी थी जो बच निकला। खामस का रुख अब भी कुतुबपुर की तरफ था, लेकिन कुतुबपुर से तकरीबन 1 मील पहले उसने घोड़ा रोक लिया। अभी दिन की रोशनी थी और वह कुतुबपुर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ एक टूटा फूटा सा मकान नजर आया। मकान खंडर बन चुका था। गालबन अरसा पहले खेतों की देखभाल के लिए यहाँ कोई किसान रहता होगा और फिर किसी वजह से यह मकान छोड़ दिया गया था जो अब खंडर बन चुका था। वो घोड़े से उतर गया। उसके ख्याल में शाम का वक्त इस खंडर में गुजारा जा सकता था। उसने घोड़े को छड़ियां मारकर एक तरफ भगा दिया और खुद खंडर में आ गया। दीवार के करीब जगह साफ करके वो दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अब उसे अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की लहरें सी उठती हुई महसूस होने लगी थी। पुलिस वालों ने उसे राइफलों के बट्टों से मारा था। उस वक्त जोश और जुनून में उसे तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब तकलीफ बढ़ती जा रही थी। खामस ने तकलीफ पर काबू पाने के लिए अपने दांत सख्ती से भींच रखे थे। उसकी आंखें भी बंद थी, लेकिन चंद मिनट बाद हैरत अंगेज तौर पर उसकी तकलीफ कम होने लगी। अब उस पर गनूदगी सी तारी होने लगी। वो जागती रहने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद का खुमार बढ़ता चला गया और कुछ ही देर के बाद वो खराटे ले रहा था। तुम लोग समझते थे कि शायद हमें धोखा देने में कामयाब हो जाओगे, गोपांग ने बारी बारी उन सब की तरफ देखते हुए कहा। तुम लोग जैसे ही सब्ज मंडी के सामने रेडो से उतरे थे, मुझे खबर हो गई थी। अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को वहीं खत्म कर दिया जाता, लेकिन मैंने अपने आदमियों को तुम्हारी निगरानी का हुक्म दिया, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते थे कि तुम लोग कहाँ जाते हो और यहाँ तुम्हारे हमदर्द कौन हैं। सेलुलर फोन पर मुझे तुम्हारे बारे में मुसलसल खबरें मिल रही थी कि तुम लोग किस तरफ जा रहे हो, और मैं तुम लोगों से पहले ही इस कच्ची बस्ती के बाहर सड़क पर पहुंच गया था। और जब तुम लोग बस्ती में दाखिल हुए तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। मेरा ख्याल है कि मैंने तुम लोगों को इत्मीनान से बैठकर सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। वो खामोश होकर एक बार फिर बारी बारी सबकी शक्लें देखने लगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो, क्या चाहते हो मुझसे, ज़रियाब ने कहा, और वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखना चाहती थी ताकि वो कुंदन की तरफ ध्यान ना दे सके। मामला एक जागीर का है, गोपांग ने जवाब दिया, और तुम जानती हो ऐसे मामलों में छोटी छोटी बातों को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, और फिर तुम तो बहुत बड़े राज से वाकिफ हो चुकी हो। एक ऐसा राज जिसका इंकशाफ रखेल शाह की बरसों की रियादत पर पानी फेर सकता है। रखेल शाह हर कीमत पर
तुम्हें अपने कब्जे में देखना चाहता है ताकि इस राज को राज ही रखा जा सके जिससे तुम आगाह हो चुकी हो। देखो मिस्टर गोपांग, ज़रियाब ने कहा, तुम्हारा रखेल शाह पर परले दर्जे का अहमक आदमी है। वो ज़माने बीत गए जब किसी जागीरदार या हुक्मरान को कत्ल करके उसकी रियासत पर कब्जा कर लिया जाता था। इस जदीद दौर में ऐसा मुमकिन नहीं। आजकल तो 100 गज के एक प्लाट पर कब्जा करने के लिए भी 20 मरहलों से गुजरना पड़ता है। रखेल शाह इतनी बड़ी जागीर पर कैसे कब्जा कर लेगा? तुम रखेल शाह को नहीं जानती और उसकी लुगत में नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। थोड़ी अरसे की बात है और उसके बाद तुम देखोगी कि उस जागीर पर रखेल शाह का कब्जा होगा, जायज़ और कानूनी कब्जा, और जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। वैसे वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर ज़रमक की तरफ देखते हुए बोला, वैसे सुना है कि तुम्हारा ये साथी बहुत बहादुर है, ये कौन है? मेरा एक दोस्त और जागीरदार का वफादार, ज़रियाब ने जवाब दिया, और इन जैसे लोगों के होते हुए जागीर पर कब्जे का रखेल शाह का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। ये तुम्हारी भूल है, गोपांग ने हल्का सा कहका लगाया। वैसे बहादुरी में तुम भी कुछ कम नहीं हो और तुमने खामस जैसे आदमी को भागने पर मजबूर कर दिया था। वो अपनी इस शिकस्त पर बहुत शर्मिंदा है और तुमसे इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। वो तुम्हारी ही तलाश में आदमपुर की तरफ गया हुआ है। अगर तुम उसके हाथ आ जाओ तो वो तुम्हारी बोटियां तक नोच डालेगा। वो इंसान नहीं, दरिंदा है। उसने जिंदगी में पहली बार शिकस्त खाई है और वो भी एक औरत से, और तुम उसकी जंजलाहट का अंदाजा लगा सकती हो। खामस वाकई दरिंदा है, ज़रियाब ने दांत कचकचाते हुए कहा। गुज़श्ता से प्यूसता रात उसने रामपुर में जो कुछ भी किया था वो उस जैसा दरिंदा ही कर सकता था। ओहो, गोपांग चौंक गया, तो उस रात तुम आदमपुर में मौजूद थी? हाँ, ज़रियाब ने जवाब दिया। शाहपुर की पुलिस उसकी तलाश में है। मुझे यकीन है कि इस मर्तबा रखेल शाह भी उसे नहीं बचा सकेगा। पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, गोपांग बोला। खामस आज किसी वक्त दरवेशपुर पहुंचने वाला होगा। हो सकता है कि वह कुतुबपुर पहुंच गया हो। उसे जब मालूम होगा कि तुम हमारे कब्जे में हो तो वह यहाँ पहुंचने में देर नहीं लगाएगा। लेकिन मैं तुम्हें उसके हवाले नहीं करूंगा। रखेल शाह तुम्हें और इन दोनों हसीन लड़कियों को देखकर बहुत खुश होगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि रखेल शाह खूबसूरत लड़कियों का दीवाना है, और तुम तीनों को देखकर तो उसकी बाँछें खिल जाएंगी। वो एक बार फिर कुंदन और खुशनुमा की तरफ देखने लगा, और उसकी बातों से ज़रियाब को यह अंदाज़ा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कुंदन को पहचान नहीं पाया था। 10 साल पहले उसने कुंदन को देखा भी होगा, तो इस तवील अरसे में बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी होंगी, और फिर कुंदन इस वक्त मुख्तलिफ हुलिये में थी। अत्मीनान रखो मिस्टर गोपांग, ज़रमक ने पहली मर्तबा गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। रखेल शाह जैसा घटिया और बदमाश आदमी को इन लड़कियों के सिलसिले में खुश होने का मौका नहीं मिल सकेगा। ऐसा मौका आने से पहले ही उसे मौत की नींद सुला दिया जाएगा। अगर तुम लोग एक मौके पर खामस की पिटाई कर चुके हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि रखेल शाह को भी नीचा दिखा सकोगे। रखेल शाह क्या है और तुम सोच भी नहीं सकते। तुम उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। गोपांग चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर अपने साथी को इशारा करते हुए बोला, कूबी ले चलो इन्हें। कूबी ने उन्हें राइफल से इशारा किया और उसके साथ ही एक उसके हलक से गिर्राहट से निकली, बाहर निकलो, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। अरे रुक जाओ, और ज़रमक दरवाजे की तरफ देखते हुए चीखा। गोपांग और कूबी ने बीक वक्त दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। ज़रमक ने एक घिसा पिटा सा नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया और उसमें 100% कामयाब रहा था। ज़रमक ने बड़ी तेजी से उछलकर कूबी की राइफल पर हाथ डाल दिया और झटका देते ही राइफल उसके हाथ में आ गई। अपनी जगह से हरकत मत करना, ज़रमक चीखा। उसने चंद कदम पीछे हटकर दोनों को राइफल की जिद पर ले लिया। उस दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। दोनों हाथ सर से ऊपर दीवार पर होने चाहिए। तुम लोग बचकर नहीं जा सकोगे। इस बस्ती को चारों तरफ से मेरे आदमियों ने घेरे में ले रखा है, गोपांग ने गुराते हुए कहा। उसी वक्त तुम दोनों सो मेरे घेरे में हो, ज़रमक ने कहा। जो कहा गया है उस पर अमल करो वरना गोली मार दूंगा। उसने उंगली ट्रैगर पर रख ली। गोपांग दांत कचकचाता हुआ दीवार की तरफ मुड़ गया। उसने दोनों हाथ सर से ऊपर दीवार पर टिका दिए थे। दांत कचकचाता हुआ दीवार की तरफ मुड़ गया और कूबी ने उसकी तकलीद की थी। ज़रमक ने कुंदन और ज़रियाब को इशारा किया। वो दोनों आगे बढ़कर गोपांग और कूबी की जेबें थपथपाने लगे। गोपांग की जेब से एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और दूसरी जेब से स्यूलर कार्ड लेस टेलीफोन और कूबी की जेब से एक चाकू बरामद हुआ था। ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। उस मकान में पहले से मौजूद मजहूर सा आदमी कोने में खड़ा थर थर कांप रहा था। ज़रमक ने उसे रस्सियाँ लाने को कहा।
तो वो आंगन में पड़ी हुई 2 टूटी हुई चारपाइयों की रस्सियां निकाल लाया। जरमक ने राइफल कुंदन को थमा दी और खुद गोपांग और कोबी को रस्सियों से बांधने लगा। चंद मिनट बाद ही दोनों रस्सियों से बंधे फर्श पर पड़े थे। क्यों गोपांग? जरमक उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैंने कहा था ना कि तुम जो कुछ कह रहे हो वो इतना आसान नहीं होगा। किसी खुशफहमी में मत रहना, गोपांग घुराया। तुम्हें दुनिया के किसी कोने में रखेल शाह से तुम्हें पनाह नहीं मिलेगी। फिलहाल तो हम यहाँ से जा रहे हैं, जरमक ने कहा। फिक्र मत करो और तुम्हें ज्यादा देर तक यहाँ बंधे नहीं रहना पड़ेगा। मैं रखेल शाह को फोन कर दूंगा, वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। वो लोग कमरे से बाहर आ गए। जरमक ने कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडा लगा दिया। राइफल उसने सेन के कोने में पड़े हुए गुस्ल खाने में फेंक दी। जरमक के ख्याल में राइफल साथ ले जाना मुनासिब नहीं था। तुम्हारा इस शहर में कोई और रिश्तेदार है या नहीं? जरमक ने उस मजूल से आदमी की तरफ देखते हुए पूछा। गरीबाबाद में मेरा ताया रहता है, मैं वहां चला जाता हूं, उस शख्स ने जवाब दिया। ठीक है, अपने ताया के पास चले जाओ। 2-4 दिन तक घर से बाहर मत निकलना, वरना मारे जाओगे, जरमक ने कहा और उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। गली में चंद नंग धड़ंग बच्चे खेल रहे थे। उसने मजूर से शख्स को हाथ से पकड़कर दरवाजे से बाहर निकाला। वो शख्स गली में बाईं तरफ मुड़ गया। जरमक ने मुड़कर दरियाब वगैरह को इशारा किया और इनसे पहले खुद दरवाजे से बाहर निकल आया। दरियाब, कुंदन और खुशनुमा भी बाहर आ गईं तो चारों गली में दाएं तरफ मुड़ गए। वो तंग और गंदी गलियों में तेज तेज कदम उठाते हुए चल रहे थे। वो जल्दी से जल्दी इस कच्ची बस्ती से निकल कर किसी महफूज मकाम पर पहुंचना चाहते थे। उस लिबास से भी जल्द निजात हासिल करना जरूरी था। ये लिबास अब उनकी शिनाख्त बन गया था और वो किसी की नजरों में आ सकते थे। गलियों में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। बाज लोग मुड़ मुड़ कर उनकी तरफ देख रहे थे। वो गलियों में घूमते हुए आबादी की पिछली तरफ निकल गए। कहाँ जा रहे हो? जरमक और कुंदन ने उसे रोककर पूछा। अभी कोई मंजिल मेरे सामने नहीं है, जरमक ने जवाब दिया। इस शहर में मेरा एक जाने वाला रहता तो है, लेकिन मुझे इसके घर का पता नहीं है। हाँ, स्कूल मास्टर जरकंद ने तुम्हें कोई पता बताया था। उसने अपने बेटे का नाम बताया था, वो कॉलेज में प्रोफेसर है। लेकिन क्या इन हालात में वहां जाना मुनासिब होगा? मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुंचे। हमें सिर्फ चंद घंटों के लिए पनाह चाहिए। इस दौरान में कोई और बंदोबस्त कर लूंगा तो हम वहां से निकल जाएंगे, जरमक ने जवाब दिया। उसके बेटे का नाम बदरान है और वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है, कुंदन ने जवाब दिया। मेरे साथ आओ, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, जरमक ने कहा और वो चारों तेज तेज कदम उठाते हुए एक तरफ चलने लगे। तकरीबन 20 मिनट बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज के सामने पहुंच गए। जरमक ने उन तीनों लड़कियों को दूर ही से रोक दिया और खुद तेज तेज कदम उठाता हुआ गेट की तरफ चल पड़ा। कॉलेज की तुलबा की आमदोरफ्त जारी थी। चौकीदार एक तरफ कुर्सी पर बैठा आते जाते लड़कों और लड़कियों को घूर रहा था। लाला और जरमक उसके करीब पहुंचकर बोला, उस कॉलेज में बदरान नाम के एक प्रोफेसर हैं, मुझे उनसे मिलना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ। प्रोफेसर बदरान? चौकीदार कुर्सी से उठते हुए बोला, यार तुम इधर मेरी जगह पर बैठो, मैं प्रोफेसर साहब को बताकर आता हूँ। जरमक कुर्सी पर बैठने के बजाय गेट के आसपास टहलता रहा। वो बार बार उस तरफ देख रहा था जहां लड़कियों को छोड़ा था। कॉलेज की दीवार के साथ साथ बाहर की तरफ तकरीबन 10 फुट चौड़ा दलान था, जिसके आगे तकरीबन 30 फुट ऊंची गार्ड मीना की बाड़ थी। कुंदन वगैरह उस बाड़ के पीछे लान में बैठ गई थीं। इस तरह उन्हें सड़क की तरफ से नहीं देखा जा सकता था। जरमक किसी कदर मुतमिन सा हो गया। तकरीबन 5 मिनट बाद चौकीदार के साथ एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी और वो एक खूबरू आदमी था। सफेद जूते, सफेद पैंट और सफेद शर्ट उसकी गोरी रंगत पर खूब जच रही थी। उसने करीब आकर जरमक से हाथ मिलाया और अजनबी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। जरमक उसे हाथ से पकड़कर एक तरफ ले गया और सरगोशी में उसे अपने और कुंदन के बारे में बताने लगा। आका दादी कहाँ है? बदरान ने उसके खामोश होने पर पूछा और उसके लहजे में अज़तराब था। वो लान में बैठी हैं, जरमक ने इशारा किया। 1 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, बदरान कहते हुए तेज तेज कदम उठाते हुए दोबारा गेट में दाखिल हो गया और उसकी वापसी तकरीबन 5 मिनट बाद हुई थी। उसके हाथ में किसी गाड़ी की चाबी थी और वह जरमक के साथ लान में आ गया। जरमक ने इशारे से बताया कि कुंदन कौन है। उसने खुशनुमा और दरियाब का तारफ भी करवा दिया था। आपको जो तकलीफ उठाना पड़ रही है, हमें उस पर अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। आका दादी, बदरदान ने कुंदन को सलाम करने के बाद कहा, यह हमारी खुश नसीबी है
कि अल्लाह ने हमें आपकी खिदमत का मौका दिया है। बाबा आपको देखकर बहुत खुश होंगे। जरकंद बाबा कैसे हैं? 3-4 रोज पहले उनसे मुख्तसर मुलाकात हुई थी। तफसील से बात करने का मौका नहीं मिल सका था, कुंदन ने कहा। बाबा ने जिक्र किया था। बदरान बोला, आप लोग यहीं पर तशरीफ रखिए, मैं गाड़ी ले आता हूँ। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ आगे जाकर कॉलेज की दीवार की दाईं तरफ मुड़ गया। इस तरफ पार्किंग एरिया था जहाँ कारें, मोटरसाइकिलें और साइकिल वगैरह खड़ी थीं। वो नीले रंग की कार में बैठ गया और उसे स्टार्ट करके पार्किंग एरिया से निकालकर गेट की तरफ ले आया। जरमक और कुंदन वगैरह कार के करीब आ गए और तीनों लड़कियां पिछली सीट पर बैठ गईं और जरमक आगे पैसेंजर सीट पर। बदरान कार को सड़क पर ले आया और उसे तेजी से एक तरफ दौड़ा दिया। तकरीबन 40 मिनट बाद कार एक कुशादा गली में एक मकान के सामने रुक गई। बदरान ने इंजन बंद कर दिया और नीचे उतरकर मकान का दरवाज़ा खटखटाने लगा। दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वो एक जवान और खूबसूरत औरत थी जिसने गोद में 6-7 माह का एक बच्चा भी उठा रखा था। बदरान ने मुड़कर इशारा किया और जरमक वगैरह कार से उतरकर मकान में दाखिल हो गए। बदरान ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें दाईं तरफ वाले एक कमरे में ले गया। ये कुशादा कमरा था। फर्श पर सुर्ख दरी बिछी हुई थी और उस दर्जे का फर्नीचर था। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं बाबा को बताता हूँ। बदरान कहते हुए कमरे से निकल गया। वो औरत भी उसके साथ ही चली गई थी। बदरान ने अभी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था कि वो कौन थी, लेकिन कुंदन को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा था। उसने बड़े प्यार से कुंदन और दूसरी दोनों लड़कियों के सरों पर हाथ फेरा। आकाजादी, और वो कुंदन की तरफ देखते हुए बोला, ज़हे नसीब, आज तो इस घर के भाग जाग उठे हैं, हमें आपकी खिदमत करके खुशी होगी। तुम्हारी आकाजादी के भाग सो रहे हैं जरकंद बाबा, कुंदन ने कहा। उसे चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागी भागी फिर रही है। हम चंद घंटे यहाँ ठहरना चाहते हैं। कोई और पनाहगाह मिल जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से दुख और मसाइब इस घर का भी रास्ता देख लें। मैं किस्मत पर यकीन रखता हूँ आकाज़ादी, जरकंद ने जवाब दिया। हमारे बारे में कोई बात जहन में ना लाइए। मेरे ख्याल में मेरा यह गरीब खाना आपके लिए महफूज है। जब तक कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं हो जाता आप यहीं रहिए। वो चंद लम्हे खामोश हुआ, फिर बोला, ये बातें तो बाद में इत्मीनान से हो जाएंगी, पहले आप खाने पीने का कुछ बंदोबस्त हो जाए। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अभी नाश्ता नहीं किया होगा। आपने जूही को नहीं पहचाना, ये मेरी वही बेटी है जो बचपन में 1-2 मरतबा मेरे साथ सुंदस महल में आई थी। उसने दरवाजे में खड़ी हुई खूबसूरत औरत की तरफ इशारा किया जिसने गोद में बच्चा उठा रखा था। मैंने पहचान लिया है, कुंदन मुस्कुराई। जूही बेटे, जरकंद ने उसकी तरफ देखते हुए बोला, लाओ बच्चे को मुझे दे दो और तुम मेहमानों के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। जी बाबा, और जूही ने आगे बढ़कर बच्चे को जरकंद के हवाले कर दिया और खुद बाहर निकल गई। मैं कॉलेज जा रहा हूँ बाबा, प्रोफेसर ज़हूरी की गाड़ी वापस करके आता हूँ, बदरान ने कहा। ठीक है बेटा, आज ज़रा तुम जल्दी वापस आ जाना, जरकंद ने कहा। बदरान बाहर चला गया। जरकंद जरमक से बातें करने लगा। जरमक दरियाब के बारे में उसे तफसील बता रहा था और वो कह रहा था, हमारी वजह से यह भी मुसीबत में फंसी हुई है। रखेल शाह को अभी तक आकाज़ादी के बारे में पता नहीं चल सका कि वो जिंदा है और उसे सिर्फ दरियाब की तलाश है जो उसकी घिनौनी साजिश से वाकिफ हो चुकी है। हमारे बारे में सिर्फ इतना जानता है कि हम उसके हमदर्द हैं और उसकी मदद कर रहे हैं। उसके साथ वो हमें भी ख़त्म कर देना चाहता है, लेकिन अगर उसे आकाज़ादी के बारे में मालूम हो जाए कि जागीर की वारस जिंदा है तो शायद वो दरियाब को भूलकर अपनी तमाम तरकुबत आकाज़ादी को तलाश करने में सिर्फ कर दे। रखेल शाह को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जरकंद ने कहा। वो जहरीला सांप है और उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है, लेकिन हम उसे दूर नहीं रह सकते, जरमक ने कहा। जागीरदार उसकी कैद में है और हम जल्द से जल्द जागीरदार को उसकी कैद से निजात दिलाना चाहते हैं। हमें शुबा है कि अगर ज़्यादा देर हो गई तो रखेल शाह उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकता है। पुलिस से राब्ता क्यों नहीं करते, जरकंद ने कहा। पुलिस, जरकंद ने गहरा सांस लिया। जब कानून के मुहाफ़िज़ अपनी कीमत वसूल कर लें तो किसी की जानो माल का महफूज नहीं रहता। पुलिस रखेल शाह के हाथों बिकी हुई है। हमारी तरफ से एक कोशिश हो चुकी है जिसके नतीजे में बंजान को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। नहीं जरकंद बाबा, पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जागीरदार को इस दरिंदे की कैद से रिहाई दिलाने के लिए जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। इस सिलसिले में सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि जागीरदार को कहाँ रखा गया है।
इससे पहले कि जरकंद कोई जवाब देता, जूही ने कमरे में दाखिल होकर बताया कि नाश्ता तैयार हो चुका है, दूसरे कमरे में आ जाएं। और वो लोग उठकर दूसरे कमरे में आ गए। मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। जूही ने मुख्तसर वक्त में बड़ा एहतमाम कर लिया था। पराठे, हाफ फ्राई अंडे, खाकीना, मक्खन, जाम और एक दो चीज़ें मौजूद थी। वो लोग बैठकर इत्मीनान से नाश्ता करने लगे। जरकंद भी बच्चे को गोद में लेकर उनके साथ बैठ गया था। कुंदन ने जूही से उसके बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जूही के साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है आकाजादी, और उसकी बजाय जरकंद ने जवाब दिया, कई साल पहले उसकी शादी हो गई थी, बड़ी पुरसकून और मुतमिन जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन फलक का जो रफ्तार को उसकी खुशियां पसंद नहीं आईं। 8 महीने पहले उसका शोहर दोनों बड़े बच्चों को स्कूल छोड़ने गया। वो मोटरसाइकिल पर था। ईंटों से लदे हुए एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन तीनों को कुचल दिया। ये बच्चा अपने बाप के इंतकाल के 1 माह बाद पैदा हुआ था। खुदा इसे सलामत रखे। वो बच्चे का मुंह चूमने लगा। बड़ा अफसोस हुआ और कुंदन ने अफसरदा से लहजे में कहा और जूही की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखें तज़किरे पर भीग गई थीं। माहौल अफसरदा हो गया था। अब नाश्ता करने को भी उनका दिल नहीं चाह रहा था और वो लोग उठकर दोबारा बैठक में आ गए। यहाँ बातों के दौरान अचानक ही जरमक को गोपांग और उसके साथी कुबी का ख्याल आ गया, जिन्हें वह बंजान वाले मकान में बांध आए थे। बाबा के पास टेलीफोन है या नहीं, उसने जरकंद से पूछा। हाँ बेटा, मैं भी लेकर आता हूँ, जरकंद कहते हुए उठकर कमरे से बाहर चला गया। चंद मिनट बाद वो टेलीफोन का कार्डलेस सेट ले आया। रखेल शाह का नंबर मालूम है? जरकंद ने उसे कार्डलेस लेते हुए पूछा। हाँ, जरकंद ने सर हिलाते हुए उसे नंबर बता दिया। जरमक ने सेट ऑन कर दिया और बटन दबाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। कॉल एक लेडी ऑपरेटर ने रिसीव की थी। रखेल शाह से बात कराओ, जरमक ने बारोब लहजे में कहा। कौन सा बात करेंगे? दूसरी तरफ से पूछा गया। जरमक मेरा नाम है। रखेल शाह मुझे जाती तौर पर नहीं जानता, लेकिन जागीरदार इमरान का हवाला दोगी तो वो बात करने से इनकार नहीं करेगा। होल्ड करें प्लीज, दूसरी तरफ से कहा गया। चंद लम्हे लाइन पर खामोशी रही और फिर एक भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, रखेल शाह स्पीकिंग। ऑपरेटर ने शायद तुम्हें मेरा नाम नहीं बताया, फिर तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं हो, जरमक ने कहा। यह दुरुस्त है कि मैं तुम्हारे नाम से वाकिफ नहीं हूँ, या हो सकता है कि ये नाम मेरे जहन में ना हो। बहरहाल कौन हो तुम? रखेल शाह बोला। मेरा ख्याल दुरुस्त था, जरमक ने कहा। तुम्हें अपने आदमियों का होश नहीं तो दूसरों के बारे में क्या जानते होगे? तुम पर तो सिर्फ दरियाब का भूत सवार है। कौन हो तुम? रखेल शाह की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। दरियाब से तुम्हारा क्या तल्लुक है? मैं दरियाब का मुहाफिज हूँ और उसे अब तक तुम्हारे जुल्म से बचाए हुए हूँ। लेकिन तुम कैसे आदमी हो कि अपने गुर्गों के बारे में कुछ नहीं जानते? जरमक ने कहा। क्या कहना चाहते हो? रखेल शाह बोला। तुम्हारा असिस्टेंट गोपांग अपने एक गुरबे कोबी के साथ दरियाब को पकड़ने के लिए बंजान के घर गया था। बंजान के बारे में भी नहीं जानते तो मैं ये भी बता दूं कि वो जागीरदार का वफादार तुम्हारे दफ्तर का मुलाजिम है, जिसे 2-3 रोज पहले उस वैशी खामस ने बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। गोपांग उसके घर में दरियाब को पकड़ने गया था, लेकिन तकरीबन 2 घंटों से वहां अपने साथी के साथ रस्सियों से बंधा पड़ा है। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उन दोनों को मौत के घाट उतार सकता था, लेकिन इस मर्तबा उन्हें जिंदा तोहफे के तौर पर तुम्हारी खिदमत में पेश कर रहा हूं, और हो सकता है कि अगली मर्तबा तुम्हें उनकी लाशें ही मिले। अब मैं समझ गया कि तुम कौन हो, जरमक। रखेल शाह की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। रखेल शाह अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। मैं दुनिया के आखिरी सिरे तक तुम्हारा और दरियाब का पीछा करूंगा। तुम लोग जिंदा नहीं बढ़ सकोगे। जिंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, रखेल शाह, जरमक ने कहा। और तुम ये भी नहीं जानते हो कि बचाने वाला मारने वाले से ज्यादा ताकतवर है। बहरहाल तुम गोपांग को वहां से ले आओ और तुमसे बाद में बात होगी, बल्कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। दूसरी तरफ से हेलो हेलो की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन जरमक ने फोन बंद कर दिया था। क्या रखेल शाह को यह सब कुछ बताना जरूरी था? दरियाब ने कहते हुए सवालिया नजरों से जरमक की तरफ देखा। हाँ, जरमक ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। मैं उसे यह तासर देना चाहता हूँ कि अब हम कमजोर नहीं हैं और डट कर उसका मुकाबला कर सकते हैं।